Okay, so let us start the session. So now we are going to discuss here what MPLS. So MPLS stands for Multi Protocol Label Switching. So before starting this session, हम पहले डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं MPLS कोर्स के अंदर. So first we'll discuss introduction, or we can say why we need MPLS. Right. And then we'll discuss what? How routers switch the packet. Like normally, like in the traditional network, let's say if we have a router. So let's suppose router के पास कोई भी पैकेट रिसीव हो रहा है. So router उस पैकेट को कैसे प्रोसेस करेगा एंड देन फॉरवर्ड करेगा, वो चीजें डिस्कस करेंगे. एंड देन डिस्कस करेंगे सेफ. एंड देन आएंगे बेनिफिट ऑफ MPLS. एंड देन डिस्कस करेंगे MPLS हेडर इन डेप्थ. So after that, there is some label types in the MPLS, that is local label, remote label, implicit null, explicit null, right? And then we are going to very depth in the LDP, right? We will discuss each and everything in LDP, right? And then we'll discuss VRF and VRF Lite. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे MPLS L3 VPN. लाइक हम पहले कवर अप करेंगे बेसिक ऑफ MPLS, राइट? एंड देन आएंगे कहाँ पे? MPLS L3 VPN. And this MPLS L3 VPN, it's a part of new CCI Enterprise Lab as well, right? So ये आपका हेल्प करेगा, आपकी जो CCI Enterprise Lab है उसके अंदर भी L3 VPN का कॉन्सेप्ट है. सो वो भी मतलब इससे आपको CCI लैब में आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है. उसके बाद हम कवर अप करेंगे क्या? बेसिक हो गया and MPLS L3 VPN हो गया. And then we'll discuss what? Okay, MPLS L3 VPN is what? It means in the MPLS L3 VPN, we are talking about within the AS. MPLS L3 VPN का मतलब है हम एक सिंगल AS के अंदर बात कर रहे हैं. मतलब जो भी डेटा फॉरवर्डिंग MPLS के थ्रू होगा वो एक सिंगल ऑटोनोमस सिस्टम नंबर के थ्रू होगा. बट लेट्स टेक एन एग्जांपल. इफ वी हैव टू ऑटोनोमस सिस्टम, मतलब मेरे पास 2 ISPs है. One ISP uses autonomous system 100, right? And another ISP uses AS number 200. So if we have two different autonomous system, so how we are communicating in between two different autonomous system number? So that is called what? Inter AS communication, right? So हम इंटर एएस कम्युनिकेशन भी डिस्कस करेंगे. मतलब अगर मैं विद इन एएस की बात करूं, सो वो हम यूज करते हैं क्या? दैट इज MPLS L3 VPN. अगर मैं बात करता हूं, लेट्स से इफ वी हैव मल्टीपल ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, राइट? लेट्स से आई एम द ISP, वी हैव मल्टीपल ISPs and those ISPs using a multiple AS number. So on that case, we are saying that concept is called what? Inter AS communication, right? और इंटर एएस कम्युनिकेशन के अंदर हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट है. ऑप्शन ए inter-AS communication option A, inter-AS communication option B, and inter-AS communication option C, right? So हम option A, option B, option C दोनों डिस्कस करेंगे, right? Okay. Okay. ये फिनिश होने के बाद then we'll discuss what? MPLS L2 VPN, right? L2 VPN में हमारे पास we can say like P2P point to point होता है, right? And P2M होता है point to multi point. So we'll discuss both. Okay. So this is our syllabus in MPLS here. Okay, I hope this is clear to you. Yep. Okay. Now, ठीक है. Okay, so MPLS स्टार्ट करने से पहले हम पहले क्या डिस्कस करेंगे? लाइक नॉर्मली राउटर का क्या बिहेवियर होता है, राइट? ओके, सो लेट्स कम हियर. ओके, सो कौशल जी, हैव एनी आइडिया? लाइक लेट्स सपोज मेरे पास एक राउटर है R1, राइट? एंड दिस राउटर हैविंग टू इंटरफेसेस. वन इज व्हाट? F0/0. One is what? F0/1, right? So let's suppose R1 router will receive any packet, right? R1 router को एक packet receive हुआ and the source IP will be 10.1, destination IP will be 20.1.
सो मतलब राउटर को कोई पैकेट अगर रिसीव हो रहा है, सो राउटर क्या करता है, कैसे इसको फॉरवर्ड करता है, एनी आइडिया? वो 10.1 से 10.20 के इंटरफेस पे फॉरवर्ड करता है, पैकेट फॉरवर्डिंग। राइट, करेक्ट. सो इट मीन्स the thing is what, whenever a router will receive any packet, so what that router will do, this is the normal behavior of router, that router always check the directly डेस्टिनेशन आईपी. ठीक है, वो राउटर क्या करेगा, जो भी पैकेट के अंदर आपकी डेस्टिनेशन आईपी है उसको चेक करेगा. सो कैन यू टेल मी द डेस्टिनेशन आईपी इज व्हाट? 20.1। 20.1. और इसका नेटवर्क एड्रेस क्या होगा? 20.0. 0। सो अब ये राउटर R1 राउटर क्या चेक करेगा, बिकॉज एवरी राउटर हैविंग इट्स ऑन राउटिंग टेबल, राइट? उसकी राउटिंग टेबल होगी, राउटिंग टेबल, राइट? अब वो राउटर क्या यस। करेगा, वो देखेगा भाई 10.0 नेटवर्क क्या मेरी राउटिंग टेबल में अवेलेबल है या नहीं, राइट? अब यहाँ पे दो कंडीशन है. अगर अवेलेबल है, लेट्स से if the route is available inside the routing table, then what that router will do, वो राउटर क्या करेगा? इट विल फॉरवर्ड, इट विल Yes, फॉरवर्ड द पैकेट। correct. It means we can say find the best exit interface and forward the packet, right? Okay, अब second condition, let's say the route is not available, it means no. So what that router will do, that router will drop the packet, that's it. ड्रॉप द पैकेट। ओके, सो वेरी सिंपल थिंग. कोई भी राउटर है हमारे पास, लेट्स सपोज राउटर के पास कोई पैकेट रिसीव हुआ, वो डायरेक्टली क्या चेक करेगा? डेस्टिनेशन आईपी. डेस्टिनेशन आईपी लेट्स सपोज 20.1 है, वो उसका नेटवर्क एड्रेस देखेगा, दैट इज 20.0. अब वो चेक करेगा क्या 20.0 मेरी राउटिंग टेबल में अवेलेबल है या नहीं. सो अवेलेबल है, सो फॉरवर्ड करेगा आगे पैकेट, और बेस्ट एग्जिट इंटरफेस फाइंड करेगा. अगर अवेलेबल नहीं है, सो व्हाट दैट राउटर विल डू, दैट राउटर विल ड्रॉ द पैकेट. क्लियर? यप। सुपर. चलो, परफेक्ट. सो अभी तक हमने क्या देखा कि एक राउटर है, राउटर के पास एक राउटिंग टेबल है, और वो राउटिंग टेबल को लुकअप करता है एंड देन फॉरवर्ड द पैकेट, राइट? अब इफ आई टॉक अबाउट द राउटर, अब थोड़ा सा और ओपन करते हैं इस चीज को, और इजी करते हैं. सो लेट्स सपोज इफ वी हैव अ राउटर हियर, राइट? सो router, when we in the router what we are doing, we are installing a iOS, right? जो नॉर्मल राउटर हमारे होते हैं, उनके अंदर जो इमेजेस होती है दैट इज कॉल्ड व्हाट? iOS, iOS। राइट? बट जो हमारे हाई सीरीज के राउटर होते हैं, और हम बोल सकते हैं लेट्स से इफ like I'm using any router on ISP, right? So those routers is called what? iOS iOS. XR। so उनके अंदर जो इमेजेस होती है वो कौन सी होती है? iOS XR images, right? So right now, if I'll talk about the ISP router, so that is called what? ASR 920 हम ISPs पे यूज करते हैं, right? And if I'll talk about the iOS XR router, so that is what in Cisco, that is NCS 540. NCS 540। That's Yes, the yes. router model number? It's a series. Series, okay. Yeah, we can say the model number, right? Because these are the special router that we are using on ISP. ठीक है, ये special routers हैं जो हम ISP पे use करते हैं, right? Okay. In India there is a multiple companies, right? Like if I'll talk about there is a company that is Realtel, right? So इंडिया के अंदर आपके जितने भी रेलवे स्टेशन है, राइट, ऑल ओवर द इंडिया, सो वहां तक जो भी आपका जो इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है, दैट इज लाइक इफ आई टॉक अबाउट द एमपीएलएस कनेक्शन, राइट? सो वो कौन देखता है? दैट इज कॉल्ड रेलटेल. रेलटेल इज अ कंपनी, इंडियन कंपनी, राइट? सो बेसिकली वो कंपनी जो यूज करे राउटर्स, वो आपके सिस्को एनसीएस राउटर भी होते हैं, राइट? एंड एएसआर राउटर भी होते हैं, exactly same like Airtel, right? Exactly same if I'll talk about the Jio.
So these are the very high series of router, right? In Cisco, the company uses on ISP, that is NCS router. Okay. Okay. Yeah. Now, so what we are discussing here, let's suppose if we have a router here, ये मेरे पास एक राउटर है. अब हम क्या करते हैं, राउटर में हम क्या करते हैं, iOS इंस्टॉल करते हैं, राइट? जैसे मैंने iOS इंस्टॉल किया, सो राउटर के अंदर ना दो चीजें होती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, RP and then what, SE. RP stands for route processor. Okay, and if I'll talk about the SE, switch engine. Okay, so we have two things in the router. So when we are installing a iOS in any router, so what happen, we can say it is not a hardware, right? ये कुछ हार्डवेयर नहीं है. जब हम iOS इंस्टॉल करते हैं, so it's a software, but we have a two software, that is what, RP and SE. RP stands for route processor, SE stands for switch engine, correct? Yes. Okay, great. अब क्या होगा? So what happened, let's say again the same thing, this this router will receive a packet with source IP address 10.1 and the destination IP will be what, 20.1, right? Okay. Whenever any router will receive a packet, so first, who will receive this packet? Because in the router we have two things, RP and switch engine. मेरे पास दो चीजें हैं राउटर के अंदर, राउट प्रोसेसर एंड स्विच इंजन. तो जब भी राउटर पैकेट रिसीव करेगा, so who will take care of this packet first? RP. No, SE, switch engine. Right? Okay. Because what happened when router will receive a packet, so obviously we have a like source MAC address or destination MAC address as well, right or wrong? Right. So first of all, what happened, so this is the normal rule, whenever a router will receive any packet, so switch engine will receive a packet, right? Okay. Now up switch engine ka kya, switch engine kya karega? When switch engine will receive a packet, so what the switch engine will do, that switch engine will remove a layer 2 header. ओके, वो क्या कर देगा, लेयर 2 हेडर को रिमूव कर देगा. क्लियर? ओके. ओके, अब लेयर 2 हेडर रिमूव हो गया, अब मेरे पास क्या बचा, लेयर 3, राइट? ओके, नाउ व्हाट दिस स्विच इंजन विल डू, दिस स्विच इंजन विल हैंड ओवर दिस इंफॉर्मेशन टू द route processor. What is route processor? Route processor, it means we can say that is called routing table, right? Route processor क्या आपका routing table. I'll show you one thing here. So see, the same thing when we install operating system in any router, so we have two terms. One is what, route processor, one is what, switch engine, right? So what is route processor? Route processor is responsible to take a routing decision and handling a control plane, right? And if I talk about the switch engine, so switch engine will find the ARP entry for those subnet we will receiving from a route processor. Okay, we'll discuss. Okay, we'll discuss this concept, like what he's saying here. Okay, what is ARP entry and all, so we'll discuss later. Okay, so अभी मैंने क्या बोला, सिंपल, राउटर के पास पैकेट आया, राउटर कौन उसको रिसीव करेगा, स्विच इंजन, और स्विच इंजन रिसीव करने के बाद क्या करेगा, लेयर 2 हेडर को रिमूव कर निकाल देगा, राइट? करेक्ट, ठीक है. अब वन मोर थिंग, ये जो हम जो टेक्निक्स जो अभी मैं जो आपको बता रहा हूं, सो ये जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोसेस स्विचिंग. ओके, देयर इज अ 3 टाइप्स ऑफ स्विचिंग. इट मींस व्हाट, लाइक अगर राउटर को पैकेट इधर रिसीव हो रहा है और वो अगर इस इंटरफेस पे आउट कर रहा है पैकेट को, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, स्विचिंग बोलेंगे. बिकॉज राउटर क्या कर रहा है, एक पैकेट से राउटर रिसीव कर रहा है, दूसरे इंटरफेस पे स्विच कर दे रहा है. So there is a 3 types of switching technique. One is what, process switching. One is what, fast switching, and then what, CF. So first we are discussing here process switching.
सो अभी मैं आपको जो भी स्टोरी बता रहा हूँ किसकी बता रहा हूँ, प्रोसेस स्विचिंग की, प्रोसेस राइट? स्विचिंग। ठीक है, चलो परफेक्ट। अब हम कहाँ पे थे? ओके, सो स्विच इंजन ने पैकेट रिसीव किया एंड देन रिमूव द लेयर टू हेडर, ओके, और हैंड ओवर कर दिया पैकेट किसको? राउट प्रोसेसर को। नाउ व्हाट दिस राउट प्रोसेसर विल डू? दिस राउट प्रोसेसर का मतलब क्या? इट इज व्हाट? राउटिंग टेबल, ठीक है। तो अब राउट प्रोसेसर क्या करेगा? राउट प्रोसेसर ने पैकेट रिसीव किया और इसने क्या चेक किया? डेस्टिनेशन आईपी। क्या है डेस्टिनेशन आईपी? 20.1 एंड द नेटवर्क एड्रेस इज व्हाट? 20.0। 20.0। अब राउट प्रोसेसर, इट मींस राउटिंग टेबल चेक करेगा क्या मेरे पास 20.0 पे जाने के लिए रूट है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ये R1 राउट, लेट्स सपोज ये इस राउटर की राउटिंग टेबल है और 20.0 पे जाने के लिए राउटिंग टेबल में क्या दिख रहा है मुझे कि अगर आपको 20.0 पे जाना है तो पैकेट कौन से इंटरफेस से एग्जिट करना पड़ेगा? F0/1, 1। ठीक है। कुछ इस तरीके से राउटिंग टेबल के अंदर दिख रहा है कि अगर कि 20.0 पे जाना है तो एग्जिट इंटरफेस कौन सा है? F0/1, करेक्ट? या ओके, मतलब अब राउट प्रोसेसर क्या करेगा? सी, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग हियर। राउट प्रोसेसर फिर से उस पैकेट को कहां पे फॉरवर्ड कर देगा? स्विच इंजन को। स्विच इंजन। उसके साथ साथ एक और चीज फॉरवर्ड करेगा, क्या चीज? एग्जिट इंटरफेस। एग्जिट इंटरफेस। कि भाई स्विच इंजन को बताएगा ना कि पैकेट मुझे किधर से एग्जिट करना है। स्विच इंजन को नहीं पता था। देखो, एक कंसर्न है, स्विच इंजन ने पैकेट को राउट प्रोसेसर को क्यों फॉरवर्ड किया? क्योंकि स्विच इंजन डोंट नो द एग्जिट इंटरफेस। That's why what the switch engine will do, the switch engine will hand over this packet to the route processor. और route processor ने क्या किया? route processor will find the best exit interface, और उसने exit interface find करके अगेन वो पैकेट को किसको फॉरवर्ड कर दिया? स्विच इंजन को। मतलब स्विच इंजन को अभी दो चीजें मिली, एक तो क्या? पैकेट, और सेकंड चीज क्या? एग्जिट इंटरफेस। क्लियर? ये क्लियर हुआ? हाँ सर। ठीक है, ग्रेट। परफेक्ट। अब देखो, अब एक और प्रॉब्लम है। अब भाई राउट प्रोसेसर ने स्विच इंजन को पैकेट फॉरवर्ड कर दिया, स्विच इंजन को क्या मिल गया? एग्जिट एग्जिट इंटरफेस इंटरफेस। भी मिल गया और जो पैकेट था वो भी मिल गया, राइट? बट आपको एक चीज याद है, मैंने आपको क्या बताया था? व्हेन दिस राउटर विल रिसीव दिस पैकेट, सो राउटर ने लेयर 3 भी रिसीव किया था और लेयर 2 भी रिसीव किया लेयर था। 2 भी बट लेयर 2 उसने क्या कर दिया था? रिमूव। रिमूव कर दिया था। करेक्ट। तो भाई जब रिसीव करा पैकेट तो लेयर 2 क्या कर दिया? रिमूव। तो जब पैकेट एग्जिट कर रहा है तो ऐड भी तो करना पड़ेगा, यस और नो? यस। राइट, बिकॉज मैक, विदाउट मैक एड्रेस पैकेट हम आगे ले जा ही नहीं सकते। तो जब मैं रिसीव कर रहा हूं पैकेट, मैं अगर रिमूव कर रहा हूं, तो जब एग्जिट कर रहा हूं पैकेट, सो ऑब्वियसली वी नीड टू ऐड द मैक एड्रेसेस, राइट? तो अब एक और चीज होती है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड व्हाट? आर। आर्प टेबल, और समटाइम्स वी कैन कॉल व्हाट? आर्प कैशे। ठीक है, ये समझ आया? हाँ। अब राउटर क्या करता है भाई? स्विच इंजन को ये तो पता चल गया मुझे पैकेट किस इंटरफेस से एग्जिट करना है? F0/1। F0/1 से। बट जब मैं पैकेट एग्जिट करूंगा ना, तो मैं मैक एड्रेस को क्या करूंगा? ऐड करूंगा। अब भाई मैक एड्रेस मिलेगा कहां से मुझे? मैं कहीं से भी कोई भी मैक एड्रेस ऐड कर दूंगा? नो। मैं कौन सी टेबल चेक करूंगा? आर टेबल, या फिर हम कह सकते हैं क्या? आर कैशे। मैं इन टेबल्स को चेक करूंगा और जो भी मैक एड्रेस होगा वो पिक करके पैकेट के अंदर लगाऊंगा एंड देन एग्जिट द पैकेट। क्लियर? वेरी सिंपल, ठीक है। सो अगेन रिपीट कर दे इस फ्लो को। व्हेन राउटर विल रिसीव द पैकेट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हु विल रिसीव दिस पैकेट, लाइक स्विच इंजन और राउट प्रोसेसर? ऐसी। ऐसे स्विच इंजन। एंड व्हाट दिस स्विच इंजन विल डू? रिमूव द लेयर 2। Perfect. After that, hand over this packet to RP RP, and RP will check the routing table and find the best exit path। path. Exit Correct. Or we can interface। say exit interface, right? Yes। And again,
forward those information to the switch engine. Yep. Right? It means now switch engine will receive exit interface and packet from the route processor, correct? Mm-hmm. Now And what this add route processor will do? Route processor need to exit this packet, but before exiting this packet, what the switch engine will do? This switch engine add the MAC MAC address. address. So that switch engine check the RF cache and pick the MAC address, add inside the packet and exit the packet. That's it. Correct? Yes, that is correct. Perfect. Perfect. Super. So let's come here. Dekho. Exactly same. This is the topology here. Right. So here we have a router that is R1 and we have one PC here, PC1, and then what, PC2. And we have two interfaces, F0 by 0, F0 by 1, and these are the IP addresses 10.2 and 20.2. And then we have what? MAC addresses 0B, 0C, right? और यहाँ पे भी क्या है 20.1 and 0D. So ये topology है, correct? अब क्या कह रहा है? Just to read these lines, R1 will get the packet and will hand over to switch engine, right? It means R1 router will receive the packet and switch engine will take care, right? Yes. Now, what the switch engine will do? Switch engine will remove the layer 2 information, correct? It means layer 2 info A and B is what? Okay. जब router packet receive करेगा ना, तो packet कुछ इस तरीके से होगा 10.1 and the destination IP address will be 20.1, source MAC address will be 0A, destination MAC address will be 0B, gateway MAC address, and right now the gateway will be 10.2. So कुछ इस तरीके से पैकेट आएगा, तो स्विच इंजन क्या करेगा? 0A और 0B को क्या कर देगा? रिमूव कर देगा. That's why here it is saying switch engine will remove the layer 2 information A and B, correct? Okay. अब क्या होगा? Now switch engine will hand over this packet to the RP. It means route processor. Now a route processor will check the routing table, or we can say route lookup in the routing table, and will find the best exit interface to reach the subnet, correct? Yes. Perfect. Now RP will hand over this information. See, RP will hand over the information and packet to the switch engine. Switch engine, yep. मतलब वो information जो भी उसका exit interface है and वो जो packet है वो किसको hand over कर देगा? Switch engine को. Now switch engine will get the layer 3 packet. देखो मैंने आपको बताया था. Switch engine क्या करेगा? Now switch engine will get the layer 3 packet and best exit interface. Exit interface. मतलब switch engine को दो चीजें receive हुआ route processor. Now कौन सा? First is what? Exit interface. Second is what? Exit interface. Packet. Yep. Right. अब वो क्या करेगा? Now switch engine will check the ARP entry. Right. Same thing I told you. Switch engine क्या check करेगा? ARP entry to find the MAC addresses for given interface. Interface के लिए. Now switch engine will add new layer to header, or we can say MAC addresses. वो क्या क्या add कर देगा? 0C and 0D, because 0C यहाँ पे है मेरा और 0D यहाँ पे है. तो जो भी इसने जब रिसीव किया था तो रिमूव किया था वो ऐड करेगा. तो ये MAC एड्रेस ने क्या कर दिया? ऐड कर दिया and will send the packet to out, correct? Yes. Clear? Any doubt till this point? नहीं. बहुत बढ़िया. Perfect. Give me a second. ठीक है. सो कौशल जी अभी तक क्लियर है? यस, वेरी क्लियर. चलो अब देखो प्रॉब्लम क्या है. अब प्रॉब्लम ये है कि लेट्स सपोज देखो जब भी हम पिंग करते हैं ना, राइट, लाइक आई विल शो यू वन थिंग. लेट्स ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट एंड मैं पिंग ट्राई करता हूं. ping 8.8.8.8. so right now my devices, that is my window device, right? So in the window device, the device will send the 4 ICMP packets, right? But when if I'll talk about the Cisco devices, so Cisco device क्या करते हैं? 5 ICMP packets send करता है वो एक बार में, right? By default. हाँ, 5 ICMP. Correct? Yep. Okay. चलो अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि अगर PC1 ने
PC2 को पिंग किया, राइट? सो दिस R1 राउटर विल रिसीव हाउ मेनी ICMP पैकेट्स? 5, राइट? 5. Because अगर मैं एक बार पिंग कर रहा हूं, so the device will sending 5 ICMP packet. It means this router will receive how many packets? 5 ICMP 5. packet, right? और अभी हमें इतना पता चल गया कि जैसे ही राउटर को कोई पैकेट रिसीव होता है, राउटर क्या चेक करता है? पहले स्विच इंजन, फिर Switch engine. राउट प्रोसेसर, अगेन फिर स्विच Switch इंजन, engine. राइट? इट Then मींस RP. वो राउटर क्या कर रहा है? स्विच इंजन, राउट प्रोसेसर, स्विच इंजन, राउट प्रोसेसर, एवरी पैकेट में वो स्विच इंजन और राउट प्रोसेसर को चेक करेगा, राइट? इट मींस अगर 5 पैकेट्स आ रहे हैं, सो 10 टाइम्स वो चेक करेगा, राइट? ये तो मैं सिर्फ अगर एक बार पिंग की कमांड चला रहा हूं उस केस में है, एंड इन रियल नेटवर्क देयर इज अ लॉट ऑफ पिंग्स, राइट? सो अगर वो इतने सारे पिंग हो रहे हैं तो बार बार राउटर क्या करेगा? राउट प्रोसेसर, स्विच इंजन, राउट प्रोसेसर, यही चेक करता रहेगा, राइट? एंड इट विल बी टेकिंग व्हाट टाइम, एंड इससे क्या होगा? आपका CPU यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा. बढ़ जाएगा और राउटर डाउन होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे. सो दिस होते. इज व्हाट प्रॉब्लम, Problem. राइट? ठीक है. सो अब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास सेकेंड स्विचिंग टेक्निक आई, दैट इज कॉल्ड व्हाट? Fast switching. ठीक है. तो प्रोसेस स्विचिंग में क्या है? सिंपली राउटर स्विच इंजन रिसीव करता है पैकेट, रिमूव करता है लेयर टू हेडर, हैंड ओवर करता है राउट प्रोसेसर को, राउट प्रोसेसर बेस्ट एग्जिट इंटरफेस फाइंड करता है, उसके बाद उस पैकेट और बेस्ट एग्जिट इंटरफेस को स्विच इंजन को फॉरवर्ड कर देता है. स्विच इंजन क्या करता है? अगेन मैक एड्रेस ऐड करता है एंड देन एग्जिट द पैकेट. नाउ लेट्स कम इन द फास्ट स्विचिंग. अब here we have one important thing. ओके, दो चीजें. अभी अभी मैंने आपको एक टेबल बताया था, लाइक व्हेन द राउटर विल एग्जिट द पैकेट, व्हेन द स्विच इंजन विल एग्जिट द पैकेट, तो स्विच इंजन कोई टेबल चेक करता है. कौन सी टेबल थी वो? ARP cache. ARP टेबल, और वी कैन से ARP कैशे, करेक्ट, राइट? अब देखो, देयर इज अ टू टेबल एक्चुअली, वी कैन से ARP टेबल और कैशे. एक और टेबल होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? राउट कैशे, और वी कैन से, ठीक है. सो अभी हम क्या बोल रहे हैं? आर्प कैशे और राउट कैशे, राइट? आर्प कैशे जो हमने पहले अभी जो डिस्कस कर लिया है, उसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन होती है? MAC address. एन आईपी एड्रेस, राइट? IP address. और यहाँ पे क्या होगा? आप बोल सकते हो यहाँ पे आईपी एड्रेस या फिर नेटवर्क IP. एड्रेस Mhm. और Exit interface. एग्जिट इंटरफेस. क्लियर? Mhm. ठीक है. सो यहाँ पे क्या होगा? मैक एंड आईपी, और यहाँ पे क्या होगा? आईपी और या फिर हम नेटवर्क एड्रेस कह सकते हैं, और उसका एग्जिट इंटरफेस, करेक्ट? Mhm. चलो, लेट्स कम हियर. अब देखो, सेम थिंग, नाउ वी आर डिस्कसिंग व्हाट? फास्ट स्विचिंग, ठीक है ना? चलो, नाउ अगेन लेट्स से दिस R1 router will receive a packet with source IP 10.1, destination IP 20.1, source MAC address will be 0A, destination MAC address will be 0B, 0B. right? Okay, now this R1 router will receive the packet, so who will receive this packet right now? Switch engine. Switch engine. And switch engine will remove the Remove packet. the Okay, layer 2. Layer 2. perfect. Yes, remove the layer 2 information. Superb. Now, so he's also saying the same thing. Switch engine will remove the layer 2 packet. Now, switch engine will hand over this packet to the RP. RP. It means route processor. Perfect. Now, what this RP will do? RP will find the best Exit exit interface and look up the routing table and makes a new route cache. Cache. So this is the new line here. Because Yep. यहां तक तो सेम था, राउट प्रोसेसर फाइंड करता है बेस्ट एग्जिट इंटरफेस, राउटिंग टेबल लुकअप करता है और बेस्ट एग्जिट इंटरफेस फाइंड करता है. बट बेस्ट एग्जिट इंटरफेस फाइंड करने के बाद ये क्या कर रहा है? एक न्यू टेबल बना रहा है, दैट इज कॉल्ड राउट Route कैशे, cache. Yep. राइट?
राउट कैशे, एंड इनसाइड द राउट कैशे वी हैव दिस इंफॉर्मेशन। मैंने आपको बताया था राउट कैशे के अंदर क्या होता है, नेटवर्क एड्रेस और एग्जिट इंटरफेस। एग्जिट इंटरफेस। ठीक है, तो अब थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं एंड डिस्कस। ठीक है, सो अभी तक प्रॉब्लम क्या था, दिस इज लाइक दिस इज द राउटर एंड हियर वी हैव आरपी एंड देन सेकंड इज व्हाट, ऐसी। एससी, राइट। सो दिस राउटर विल रिसीव द पैकेट, सोर्स आईपी क्या है 10.1, डेस्टिनेशन आईपी क्या है 20.1, सोर्स मैक एड्रेस 0 डेस्टिनेशन मैक एड्रेस 0 ठीक है। अभी राउटर ने पैकेट रिसीव किया, किसने पैकेट को रिसीव किया, स्विच इंजन या राउट प्रोसेसर, राउट प्रोसेसर, राइट। राउट प्रोसेसर विल रिमूव दिस पैकेट एंड हैंड ओवर दिस पैकेट टू द राउट प्रोसेसर। अब राउट प्रोसेसर ने क्या किया, राउट प्रोसेसर क्या चेक कर रहा है, आपकी राउटिंग टेबल। ठीक है, अब राउटिंग टेबल जब उसने चेक किया तो उसको क्या मिल गया, एग्जिट इंटरफेस। चलो ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब राउट प्रोसेसर को पैकेट रिसीव हुआ तो राउट प्रोसेसर तो कौन सा चेक करता है, डेस्टिनेशन आईपी चेक करता है, राइट। तो डेस्टिनेशन आईपी क्या है 20.1। इसका नेटवर्क एड्रेस क्या होगा 20.0। चलो, सो अब राउट प्रोसेसर ने राउटिंग टेबल चेक किया, क्या मेरे पास 20.0 है, यस बिल्कुल है। और 20.0 पे जाने के लिए एग्जिट इंटरफेस कौन सा है, लेट सपोज F0/1। F0/1, ठीक है। तो 20.0 पे जाने के लिए एग्जिट इंटरफेस कौन सा है F0/1। F0/1। तो ये इंफॉर्मेशन इसको मिल गई और ये एक न्यू टेबल सेम टाइम बना लेगा, उसको क्या बोलेंगे, राउट कैशे। करेक्ट, राउट कैशे। और उसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन रखेगा कि इस नेटवर्क पे जाने के लिए किस पे 20.0 पे बेस्ट एग्जिट इंटरफेस क्या है F0/1। 0/1। F0/1 है, करेक्ट। चलो, अब देखो पहले क्या हो रहा था, सी what happened in the previous case, in the first technique that is called what, प्रोसेस स्विचिंग। अभी ओल्ड वाले की बात करें जो अभी हमने अभी तक जो पढ़ा है, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा था कि राउट प्रोसेसर इसको दो चीजें दे रहा था, एक तो क्या बेस इंटरफेस। एग्जिट इंटरफेस एंड सेकंड एग्जिट पैकेट, इंटरफेस। ठीक है। चलो, बट अब क्या हो रहा है, अब क्या होगा, अब राउट प्रोसेसर क्या क्या फॉरवर्ड करेगा, इसको क्या क्या शेयर करेगा, पैकेट तो शेयर करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ एक नेटवर्क टेबल एड्रेस बनाएगा एंड और द एक बेस न्यू टेबल दैट इज कॉल्ड राउट कैशे। राउट कैशे, और शेयर कर देगा किसको, स्विच, ऐसी को। राइट। अब स्विच इंजन के पास ये टेबल क्या हो जाएगी, सेव, सेव हो जाएगी। सेव हो जाएगी कि अब अगर स्विच इंजन के पास कोई भी पैकेट आता है किस नेटवर्क के लिए, इस नेटवर्क के लिए 20.0 के लिए, तो 20.0। पैकेट किधर से एग्जिट करना है, F0/1। पहले क्या हो रहा था, देखो पहले क्या हो रहा था कि स्विच इंजन को नहीं पता था, क्योंकि स्विच राउट प्रोसेसर उसको क्या फॉरवर्ड करता था, पैकेट और एग्जिट इंटरफेस, बट वो स्विच इंजन उसको सेव नहीं करता था, गेटिंग अ पॉइंट। अब क्या हुआ, अब राउट प्रोसेसर ने एक न्यू टेबल बनाई दैट इज कॉल्ड राउट कैशे एंड शेयर विद द स्विच इंजन। अब स्विच इंजन उसको क्या कर ले रहा है, सेव कर ले रहा है, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब स्विच इंजन ने भाई पैकेट एग्जिट करना है तो मैक एड्रेस तो ऐड करना पड़ेगा ना, तो वो अब फिर से कौन सी टेबल चेक करेगा, आर्प। आर्प कैशे, करेक्ट। और आर्प कैशे कैशे। में से जो भी मैक एड्रेस होगा उठा के ऐड कर देगा और पैकेट को क्या कर देगा, एग्जिट कर देगा। एग्जिट। इतना क्लियर है, कोई डाउट अभी तक, नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं, वेरी परफेक्ट, क्लियर। सुपर सुपर। नाउ सो ये सॉरी, ये जो भी मैंने आपको जो प्रोसेस बताया, राइट, दैट इज व्हाट, फास्ट स्विचिंग। यस, फास्ट स्विचिंग। बट देखो आपको याद है, राउटर अगर मैं एक बार पिंग कर रहा हूं, सो द डिवाइस विल रिसीव हाउ मेनी आईसीएमपी पैकेट्स बाय डिफॉल्ट 5, 5। करेक्ट।
सो ये जो अभी जो पूरा मैंने स्टोरी बताई ना पूरी, वो कौन से वाले, ये फर्स्ट आईसीएमपी की स्टोरी है, राइट, फर्स्ट आईसीएमपी, ठीक है। अब भाई देखो, अब देखो प्रॉफिट क्या हुआ कि फर्स्ट आईसीएमपी ने एक काम कर दिया, क्या काम कर दिया कि स्विच इंजन के अंदर एक टेबल सेव करवा दी कि 20.0 के लिए कोई भी पैकेट आएगा एग्जिट इधर से ही करना है, राइट। यस, अब सेकंड पैकेट आया फिर से किसके पास, राउटर के पास, एंड इन द राउटर हु विल रिसीव दिस पैकेट, स्विच ऐसी। इंजन। स्विच इंजन ने पैकेट रिसीव किया। अब आप मुझे एक चीज बताओ कि स्विच इंजन राउट प्रोसेसर को पैकेट क्यों हैंड ओवर करता था, बिकॉज स्विच इंजन डोंट नो व्हाट इज द एग्जिट इंटरफेस, एग्जिट, इसलिए एग्जिट स्विच इंजन इंटरफेस। किसको हाँ फॉरवर्ड करता था पैकेट, राउट प्रोसेसर को, राइट। हाँ। But now, in this case, switch engine will receive the packet and the destination IP will be what? 20.1, right? 20.0। Yes, we can say 20.0, network address अगर बोल देंगे. So that is 20.0, right? तो destination क्या हुआ? 20.0. अब भाई मेरे पास तो ये इंफॉर्मेशन पहले से ही क्या है, सेव है। सेव है। तो क्या स्विच इंजन इसको राउट प्रोसेसर को फॉरवर्ड करेगा? नहीं करेगा। नो, नेवर। गेटिंग अ पॉइंट? यप। So now this switch engine do not hand over this packet to the route processor, because in the switch engine we have a new table that is called route cache, and that switch engine will check the route cache. We have any 20.0? Yes, we have. And what is the exit interface? That will be F0/1। F0/1. And now this switch engine will know we need to exit the packet or interface F0/1. So before exiting the packet, again the device will check ARP cache and add the layer 2 MAC address and then exit the packet, correct? यस। Clear? यस। Any doubt? नहीं सर। सुपर, ठीक है। सो अब देखो, अब प्रॉफिट क्या हुआ, देखो प्रॉफिट क्या हुआ कि भाई पहले जो था, पहले अगर हमारे राउटर की सीपीयू यूटिलाइजेशन 100% जा रही थी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, फर्स्ट पैकेट में तो राउटर राउट प्रोसेसर भी चेक कर रहा है और स्विच इंजन भी चेक कर रहा है, बट इन द सेकंड पैकेट, थर्ड पैकेट, फोर्थ पैकेट एंड फिफ्थ पैकेट द डिवाइस विल चेक ओनली ऑन द एससी स्विच इंजन, करेक्ट, राइट। देखो फर्स्ट पैकेट में क्या हो रहा है, दोनों चीजें चेक कर रहा है, राउट प्रोसेसर भी और हाँ। स्विच इंजन भी। बट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पैकेट में क्या हो रहा है, ओनली स्विच इंजन चेक कर रहा है एंड देन एग्जिट द पैकेट, राइट। यस। इन द फर्स्ट केस क्या था हमारा, प्रोसेस हंड्रेड स्विचिंग। परसेंट प्रोसेस स्विचिंग में क्या हो रहा था, सीपीयू यूटिलाइजेशन। 100%। बट अब अगर मैं बात करूं किसकी, फास्ट स्विचिंग की फास्ट 20%। स्विचिंग की, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि 60% सीपीयू यूटिलाइजेशन अभी भी हो रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं कि 40% सीपीयू यूटिलाइजेशन अभी भी हो रहा है। क्यों? कि भाई फर्स्ट पैकेट तो चेक कर रहा है ना। लेट सपोज इस राउटर को 10 टाइम्स किसी ने पिंग किया, तो 10 टाइम्स अगर पिंग किया तो इट मींस 10 टाइम्स अगर मैंने पिंग किया तो फर्स्ट पैकेट तो एवरी टाइम राउट प्रोसेसर और स्विच इंजन चेक करेगा ही करेगा, राइट। हाँ। तो अभी भी सीपीयू यूटिलाइजेशन जीरो नहीं हुई, 40% हो गई, राइट। यस। अभी भी प्रॉब्लम है कि सीपीयू यूटिलाइजेशन स्टिल इट इज 40%, राइट। सो यस सर। नाउ Cisco makes one more process and that is called what? CF। Yes, CEF. CEF stands for Cisco Express Forwarding, clear? And it name suggests it's a Cisco proprietary protocol, okay? Only we are using this protocol in the Cisco devices, okay? अब बात करते हैं सेफ की सेफ क्या चीज है, ठीक है, चलो। देखो अब अगर मैं सेफ की बात करूं,
तो भाई अभी तक राउटर के अंदर मेरे पास दो चीजें थी, वन इज व्हाट, आरपी, वन इज व्हाट, RP SE स्विच इंजन। अब क्या हुआ, सेफ को हमने, सॉरी, स्विच इंजन को रिप्लेस कर दिया विद CF। सीएफ, सेफ, करेक्ट। ओके, ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। चलो अब यहाँ पे कुछ न्यू टर्म्स है, दैट इज व्हाट, देयर इज अ टू टर्म, वन इज व्हाट, RIB routing information RIB base, RIB, second is what, forwarding information based. yes, RIB stands for routing information based, FIB stands for forwarding information based. Uh-huh. Now अब देखो, राउट प्रोसेसर आरपी, राइट। अब देखना ध्यान से, राउट प्रोसेसर के पास क्या होती है, राउटिंग टेबल, राइट। और राउटिंग टेबल को हम क्या बोलते हैं, रिब बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ, हाँ ठीक है। उसके बाद, अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ बोलो। आर्प टेबल जो है वो कौन मेंटेन करता है, राउट प्रोसेसर या फिर सेफ, SEF या फिर राउट प्रोसेसर या फिर स्विच इंजन? switch engine। नो, आरपी विल टेक केयर ऑफ राउट कैशे, सॉरी नॉट राउट कैशे, आर्प कैशे, ठीक है। ये ARP कैश में। हाँ यस, सो आर्प, सॉरी, राउट प्रोसेसर के पास राउटिंग टेबल थी, वो राउटिंग टेबल क्या बन गई, RIB ठीक है। चलो अब राउट प्रोसेसर के पास एक और चीज है, क्या, आर्प ARP कैशे। कैश है। तो इस टाइम पे राउट प्रोसेसर के पास दो चीजें, एक तो क्या है, रिब, और एक क्या है, आर्प कैशे, करेक्ट। हम्म। चलो ठीक है, so route processor here, route processor have RIB rib and ARP cache. So what happen, अब ध्यान से देखना, अब क्या करता है राउट प्रोसेसर, क्या करता है, अपनी राउट प्रोसेसर के पास दो चीजें, कौन कौन सी, एक तो क्या है, रिब है, और एक क्या है, ARP कैश है। आर्प कैशे। सो और अभी ये किसके पास है, राउट प्रोसेसर के पास है, और दूसरी चीज हम्म हमारे पास क्या है, सेफ। अब अगर हम्म। राउट प्रोसेसर, ध्यान से देखना, राउट प्रोसेसर रिब टेबल को फॉरवर्ड करता है किसको, सेफ को। तो जब आपकी रिब टेबल सेफ के पास आ जाती है तो वो क्या बन जाती है, फिब। देर इज नो एनी डिफरेंस इन बिटवीन, बट व्हाट वी आर सेइंग, व्हेन दिस route processor is take care of rib, or we can say the routing, so that is called rib. When ceph is take care of routing, so that is called fib. मतलब यहाँ पे अगर वो है तो रिब है, बट अगर राउट प्रोसेसर रिब को फॉरवर्ड कर देता है सेफ के पास तो उसको क्या बोला जाता है, फेब। क्लियर। यस इसी सर। तरीके से राउट प्रोसेसर इज ऑल्सो शेयर आर्प कैशे टू सेफ, और जब आर्प कैशे को हम सेफ को फॉरवर्ड कर देते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, एडजेंसी, राइट। तो अब आपकी सेफ के पास दो चीजें हो गई, एक तो क्या, फेब, और एक तो क्या, एडजेंसी टेबल, एडजेंसी टेबल। ठीक है। नाउ राउट प्रोसेसर, सो ही इज ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग हियर, राउट प्रोसेसर have rib and arp cache. So what happen here, route processor will hand over our rib to ceph. So when ceph receive this rib, so that is called fib. जब ceph जो है रिब टेबल को रिसीव करता है अपने पास तो उसको हम क्या बोलते हैं, फेब बोलते हैं। एग्जैक्टली सेम हियर नाउ, राउट प्रोसेसर विल हैंड ओवर द आर्प कैशे टू सेफ, once ceph will receive the arp cache, so that is called what, adjacency. Clear? It means now SEP having feb and adjacency, right?
हम्म ओके, तो अब देखो भाई, हो क्या रहा था पहले कि राउट प्रोसेसर के पास दोनों चीज थी, रिब भी थी और आर्प भी थी। तो इसलिए राउटर क्या चेक करता था, राउट प्रोसेसर भी चेक करता था पहले। बट अब राउटर राउट प्रोसेसर चेक नहीं करेगा। व्हाई? बिकॉज सेफ के पास वो इंफॉर्मेशन आ चुकी है पहले। मतलब फेब, मतलब आपका फेब को हम बोल सकते हैं इनडायरेक्टली दैट इज माय राउटिंग टेबल। सो हम्म फेब भी रिसीव हो गया सेफ टेबल को, और एडजेंसी भी रिसीव हो गया किसको, सेफ टेबल को, राइट। अब इन केस में क्या होगा, अब नाउ व्हाट हैपन, let's say if we have a router, we have a RP, and then we have a Ceph. So now whenever a router will receive a packet, so Ceph will remove the layer 2 header and find the best X interface, because वो X interface हमें कहाँ पे मिलेगा, फिब के पास। फिब के अंदर, राइट। सो Ceph ने क्या चेक किया, फिब फिब टेबल चेक किया। फिब टेबल चेक करते हमें क्या मिल गया, एग्जिट इंटरफेस मिल एग्जिट। गया, राइट। ओके, अब मुझे एग्जिट इंटरफेस लेट सपोज f0/1 मिला, मुझे पैकेट एग्जिट करने से पहले व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू ऐड द लेयर 2 हेडर। अब वो सेफ क्या चेक करेगा, एडजेंसी। adjacency, right? Now it will be check the adjacency table, whatever MAC address we have, we need to add the MAC address and then exit the packet, right? Clear? यस। So this is called what? Ceph. सेफ। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब जितने भी अगर मेरे पास 5 पैकेट रिसीव हो रहे हैं, तो वो पैकेट सिर्फ क्या चेक करेंगे, Ceph only. They don't check the route processor, never. Okay. But at the first time when we enable a routing or any routing protocol, so ऐसा नहीं है कि राउट प्रोसेसर का काम खत्म हो गया, नो। देखो, एट द फर्स्ट टाइम जो आपको एग्जिट, जो सेफ को जो एग्जिट इंटरफेस बता रहा है, या जो फेब के अंदर जो एग्जिट इंटरफेस आ रहा है, वो इंफॉर्मेशन रिसीव कहां से हो रही है, रिसीव तो आपकी रिब से ही हो रही है, और राउटिंग। रिब किसके पास है, आरपी के पास। आरपी। तो मतलब आरपी यूज अभी भी हो रहा है, बट हो क्या रहा है, व्हेन वी आर इनेबलिंग अ राउटिंग प्रोटोकॉल, इमीडिएटली आरपी इज डूइंग अवर वर्क एंड शेयर, or we can say, just to what this RP will do, RP will make a copy and that copy will share with the Ceph. वो कॉपी, सेफ। एक कॉपी बना रहा है और उस कॉपी को शेयर कर दे रहा है Ceph के साथ। तो कोई भी राउटर जब पैकेट रिसीव कर रहा है तो Ceph पूरा प्रोसेस कर दे रहा है, बट उसके पास जो पावर आ रही है प्रोसेसिंग की, या एग्जिट कहां से करना है, जो भी चीजें हैं, वो पावर किधर से आ रही है, आरपी के पास। फ्रॉम आरपी, राइट। दैट्स इट। So this is what we are calling, this is called normal सेफ। IP forwarding. Like how that router will forward the packet. I hope now it is clear. And now it is यस। clear what is RIP and what is FIB. राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस एंड फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस। Right. सो राउटिंग टेबल, आरपी राउटिंग टेबल जो रिप रिप में कन्वर्ट करके वो सेफ को देता है। Right. और आर्क टेबल है वो सेफ को देता है, तब एडजेंसी बनती है वो। Adjacency table. Correct. मतलब राउट प्रोसेसर के पास क्या था, हमारे पास राउट प्रोसेसर के पास राउटिंग टेबल था, बेस राउटिंग टेबल ठीक है। वो रिब में यस, सो राउटिंग स्टोर हो टेबल गया। को एक्चुअली RIB रिब बोला जाता है, हम्म। ठीक है। बट राउट प्रोसेसर अगर इस रिब को फॉरवर्ड कर दे फिब, सॉरी सेफ को, तो उसको क्या बोलते हैं, फिब एफ बोलते आई हैं, बी। फिब। राइट। ओके, I hope this thing is clear to everyone. यस। Great. So this is what normal IP forwarding. अब देखो, now the question is what? Why do we use MPLS? So if you ask a question to anyone like why do we use MPLS? So there is a lot of reasons, right? बहुत सारे reason है, वो हम discuss करेंगे. But अगर मैं like if I talk about the older network, मतलब जो अभी nowadays MPLS को यूज करने के लिए lot of reasons. बट जब एमपीएलएस बना था, जब स्टार्ट हुआ था, तो फर्स्ट जो उसका काम था ना, वो क्या था,
फास्ट फास्ट फॉरवर्डिंग, फॉरवर्डिंग। ठीक है, उसका काम क्या था, फास्ट फास्ट फॉरवर्डिंग। फॉरवर्डिंग। अब देखो भाई, फास्ट फॉरवर्डिंग तो देखो मैंने क्या बोला आपको कि एमपीएलएस का पहला जो कंसर्न था वो क्या था, फास्ट फॉरवर्डिंग। फास्ट फॉरवर्डिंग। बट अगर मैं बात करूं सेफ का, तो सेफ ने तो फास्ट फॉरवर्डिंग को अचीव कर लिया, हम्म। राइट। बिकॉज पहले क्या हो रहा था, राउट प्रेशर भी चेक हो रहा था, आरपी भी चेक हो रहा था, बट उसको तो हमने हाँ। सारा वो तो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। सेफ ने तो अपना काम कर दिया। सेफ भी हम्म। तो सेफ भी तो क्या कर रहा है, फास्ट फॉरवर्डिंग कर रहा है, राइट और रॉन्ग। यस। सो व्हाई वी आर यूजिंग एमपीएलएस, राइट। ओके, चलो मैं क्लियर करता हूं थोड़ा सा एमपीएलएस के बारे में, मैं आपको बताता हूं व्हाट इज एक्चुअली द एमपीएलएस। देखो, लेट सपोज मेरा एक राउटर है R1, here we have a router R1, right? Okay, अब what happened in the R1 router, R1 राउटर ने पैकेट रिसीव किया, सोर्स आईपी 10.1, डेस्टिनेशन आईपी 20.1, करेक्ट, ठीक है। फिर हमें पूरा प्रोसेस पता ही है कि कैसे फॉरवर्ड करता है वो, स्विच इंजन और जो भी चीजें, ठीक है। चलो, हम्म। तो ये तो आपकी नॉर्मल आईपी फॉरवर्डिंग हो गई, ठीक है। अब हम्म। अगर मैं एमपीएलएस की बात करूं, सो मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग, एमपीएलएस। पहली हम्म। चीज, अगर मैं ओएसआई मॉडल की बात करूं, सो वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल लेयर 1 एंड देन व्हाट, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, एंड लेयर लेयर 5। 5। अगर मैं नॉर्मली लाइक टीसीपी आईपी की बात करूं, सो वी हैव 5 लेयर्स, राइट। ठीक है। अब अगर मैं एमपीएलएस बोलूं, एमपीएलएस, पहली चीज, एमपीएलएस वर्क इन बिटवीन, राइट, इन बिटवीन लेयर 2 एंड लेयर लेयर 2, 3। मतलब एमपीएलएस का हेडर कहां पे लगता है, यहाँ लेयर पे, 2 और लेयर 3। राइट। इट मींस वी कैन से दैट इट्स अ 2.5 लेयर ऑफ कोड, 2.5। करेक्ट। बट आप कभी भी किसी को 2.5 नहीं बोलोगे, ये हम लोग ने बना दिया है, लाइक इट्स अ 2.5, 2.5, बट आप ऐसा नहीं बोल सकते इट्स अ 2.5 लेयर। यू कैन से इट वर्क्स इन बिटवीन लेयर 2 एंड लेयर 3, बिकॉज ये तो एक, देखो भाई, ओएसआई मॉडल ने बोला है हमारे पास 7 लेयर है, अभी मैंने अगर एक और लेयर बना दी 2.5, तो ये तो 8 लेयर हो जाएंगी। हम तो पूरा मॉडल ही प्रिंसिपल ही चेंज कर रहे हैं, सो वी डोंट से इट्स अ 2.5 लेयर, always यस। we can say it's a layer, it works in between layer 2 and layer 3, correct। यस। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे लग गया हमारा एमपीएलएस का हेडर, ठीक है। क्या होगा, लेट सपोज अभी ये जो राउटर है ना, R1 राउटर, इस R1 राउटर के पास एक टेबल है। अभी मैं उस टेबल का नेम नहीं बता रहा आपको, विल डिस्कस लेटर दैट टेबल, ठीक है। आप उसको अभी ये समझ लो, दिस इज व्हाट, एमपीएलएस टेबल, ठीक है। ये एक एमपीएलएस का टेबल है, और इस टेबल में ना कुछ इंफॉर्मेशन कैसे दी हुई है, कुछ इस तरीके से, 20, 30। नाउ एमपीएलएस स्टैंड्स फॉर व्हाट, मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग। लेबल तो स्विचिंग। एमपीएलएस क्या करता है, देखो ध्यान से देखना बिल्कुल, एमपीएलएस ना क्या करता है, टैग ऐड करता है। क्या करता है, टैग ऐड करता है। टैग ऐड करता है। मतलब क्या है इसका, लेट सपोज आपके पास ना एक राउटर है, और उसकी राउटिंग टेबल में दो राउट है, एक है क्या 10.0, एक क्या है 20.0, ट्वेंटी लेट्स डॉट जस्ट जीरो एग्जांपल, ठीक है। अभी कोई एमपीएलएस इनेबल नहीं है, राइट।
अब मैंने क्या किया, उस राउटर पे गया और मैंने क्या इनेबल कर दिया, MPLS एमपीएलएस। तो वो क्या करेगा, टैग ऐड कर देगा। तो वो क्या करेगा कि 10.0 के लिए इसने लेट सपोज एक टैग ऐड कर दिया, क्या 20, और 20.0 के लिए एक टैग ऐड कर दिया, क्या 30। 30। अभी कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली ये काम है एमपीएलएस का। क्या काम है, वेरी सिंपल। जैसे ही हमने एमपीएलएस इनेबल किया, वो राउट के लिए जो भी आपकी राउटिंग टेबल में अवेलेबल होने के लिए क्या करेगा, टैग ऐड कर देगा। टैग ऐड कर देगा। सो 10.0 के लिए इसने 20 कर दिया, और 20.0 के लिए इसने 30 कर दिया। ठीक है। चलो ग्रेट। अब देखो भाई, अब लेट सपोज मेरे दो राउटर थे, एक यहाँ पे R1 है और ये राउटर है क्या, R2। ठीक है। चलो, ये राउटर इस तरीके से कनेक्टेड है। इस राउटर पे भी क्या था, एमपीएलएस इनेबल था, और इस राउटर पे भी MPLS क्या था, MPLS। एमपीएलएस इनेबल था। चलो परफेक्ट। अब देखो क्या होगा, अब ये R1 राउटर पैकेट फॉरवर्ड कर देगा इसको R2 को। अब ये जो पैकेट होगा ना, कुछ इस तरीके से, लेट सपोज कि सोर्स आईपी है हमारा 10.0 50.1 है, लेट 50। सपोज, ठीक है। और डेस्टिनेशन आईपी क्या है, 10 डॉट हम 60। मान लेते हैं 1 है, ठीक है। चलो, तो ये पैकेट है, ठीक है। बट हमने इस पे क्या इनेबल कर दिया है, MPLS तो एमपीएलएस इनेबल करते ही टैग लग जाएगा। डेस्टिनेशन आईपी क्या है, 10.1। ठीक है। तो एमपीएलएस इनेबल करती है। अब R1 राउटर ने जब इस पैकेट को क्या किया, एग्जिट किया ना यहाँ से, तो इसने इस पैकेट को एक लेबल दे दिया। उसको आप लेबल बोल लो या फिर टैग बोल लो। मैंने क्या बताया था कि एमपीएलएस इनेबल करती है वो डिवाइस क्या करता है, टैग टैग बोलता ऐड है। करता है, या फिर आप बोल सकते हो लेबल। लेबल ऐड करता है, राइट। लेबल बोलते हैं, चलो। तो उसने लेबल ऐड कर दिया, क्या 20, करेक्ट, ठीक है ना। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो आईपी पैकेट है ये कौन सी लेयर है, लेयर 3। और ये जो ये एमपीएलएस ने टैग ऐड किया ये कौन सा लेयर है, लेयर बिटवीन लेयर 2 एंड करेक्ट करेक्ट, इट मीन 2.5 बोल देते हैं अभी, ठीक है, राइट। 3। चलो, अब ये किसको रिसीव हुआ, R2 को इंटरफेस। R2 को। अब ध्यान से देखना, अब अगर R2 को ये रिसीव हो रहा है, तो पहले तो मुझे पोर्ट पे पैकेट आया, मतलब पहले राउटर ने क्या चेक किया, लेबल। लेयर 1 लेयर 1 सॉरी है। है ना। ओएसआई मॉडल जैसे हमारा जो पैकेट रिसीव होता है, तो हाँ, फिजिकली हमें रिसीव हुआ ना, तो लेयर 1 हुआ, करेक्ट। लेयर 1। उसके बाद कौन सा लेयर चेक किया। लेयर 2। अब भाई एक चीज मुझे बताओ, हमने एमपीएलएस इनेबल किया हुआ है, बिल्कुल किया हुआ हाँ। है। अब अगर एमपीएलएस इनेबल किया हुआ है, तो ऑब्वियसली इन बिटवीन लेयर 2 लेयर 3 उसने एमपीएलएस का हेडर ऐड किया होगा, बिल्कुल किया हम्म होगा। तो मतलब R2 ने जब पैकेट रिसीव किया, तो पहले मैंने क्या चेक किया, R2 ने क्या चेक किया, लेयर 1। फिर क्या चेक किया, लेयर 2। अब वो डायरेक्टली क्या लेयर 3 चेक करेगा, नो, नहीं। पहले कौन सा चेक करेगा, कौन सी लेयर आ रही है, 2.5 मतलब एमपीएलएस, 2.5 राइट। MPLS। तो R2 राउटर आईपी को ना चेक करके क्या चेक करेगा, लेबल को। परफेक्ट, लेबल इज व्हाट, 20। 20। अब वो R2 राउटर अपनी एमपीएलएस टेबल में देखेगा, भाई मेरे पास 20 लेबल है क्या, यस। यस। और 20, एक्चुअली राउटर क्या करता है ना, कि अगर मुझे जो भी लेबल रिसीव हुआ, उस लेबल को क्या करेगा, रिमूव करेगा और न्यू लेबल ऐड कर देगा। तो R2 को क्या रिसीव हुआ, 20। हाँ। तो 20 से इसने उसको रिमूव करके क्या किस में चेंज कर दिया, 30। 30 में, और पैकेट को सेंड कर दिया दूसरे राउटर को। हम्म तो आपको देखो, आपको समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं, कि हाँ हाँ। एमपीएलएस ने क्या किया कि R2 राउटर को आईपी लुकअप करने ही नहीं दिया। यस। पहले क्या हो रहा था, लेयर 2 से पैकेट किसके पास जा रहा था, लेयर 3 के पास। है ना। नॉर्मल आईपी पैकेट में तो यही हो रहा था हमारे पास, हम्म। राइट।
बट अब क्या किया, एमपीएलएस इनेबल करते ही ये राउटर आईपी को चेक करके फॉरवर्ड नहीं कर रहा पैकेट, किसको चेक करके कर रहा है? लेबल को, टैग को। लेबल्स को। गेटिंग अ पॉइंट? हम्म। So, what is MPLS actually? Previously, always these routers forward the packet basis of IP. IP But nowadays, after enabling the MPLS, these routers forward the packet basis of MPLS लेबल, सॉरी। labels. Right? I hope this is clear to you. यस। ठीक है? अब भाई मैंने आपको एक चीज बताई, अभी भी देखो प्रॉब्लम है, बट अभी तो हमें बस क्या समझ आया कि आईपी पे पहले जैसे पैकेट फॉरवर्डिंग होती थी वो क्या था, और हमें ये भी समझ आ गया कि एमपीएलएस इनेबल होने के बाद कैसे पैकेट फॉरवर्डिंग हो रही है। क्लियर? हो रही है। मतलब अब, मतलब ऐसा हो रहा है कुछ कि राउटर को एमपीएलएस आईपी चेक ही नहीं करने दे रहा, वो क्या कर रहा है, लेबल को चेक करके पैकेट को फॉरवर्ड करवा दे रहा है। यस। राइट? आईपी को चेक ही नहीं हो रहा, मतलब आईपी लुकअप बंद हो गया। ओके चलो, बट अभी भी देखो प्रॉब्लम क्या है। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि एमपीएलएस हम किस लिए यूज करते हैं? फास्ट फास्ट फॉरवर्डिंग। फॉरवर्डिंग के लिए, है ना? एमपीएलएस हम यूज करते हैं फास्ट फॉरवर्डिंग के लिए। अब आप मुझे ये चीज बताओ कि भाई इसमें कौन सी फास्ट फॉरवर्डिंग हो रही है। देखो भाई सिंपल सी बात क्या है, मैं आपको बताता हूं। नॉर्मल आईपी पैकेट में क्या हो रहा था, डिवाइस क्या चेक करता है? सिर्फ, सीएफ। राइट? और अभी अगर एमपीएलएस फॉरवर्डिंग की बात करूं तो अब ये क्या चेक कर रहा है? एमपीएलएस टैग। एमपीएलएस मतलब एमपीएलएस टेबल चेक टेबल कर रहा है या ना? टेबल। एमपीएलएस टेबल चेक कर रहा है और एमपीएलएस टेबल के बेस पे फॉरवर्डिंग कर रहा है अभी। हम्म। तो भाई पहले क्या हो रहा था, पहले मुझे पैकेट आ रहा था, मैं पैकेट में हम्म। डेस्टिनेशन आईपी चेक करता था, हम्म। टेबल के अंदर चेक करता था, अगर अवेलेबल है बेस्ट एग्जिट इंटरफेस फाइंड करके पैकेट को क्या कर देता था, आउट। मतलब हम बोल सकते हैं कि तीन काम हो रहे थे क्या। पहले वो चेक कर रहा था डेस्टिनेशन आईपी, लूप कब कर रहा था सेफ टेबल को, उसके बाद पैकेट को क्या कर दे रहा था, आउट करा था। आउट कर रहा था। अभी भी क्या हो रहा है भाई, पहले मुझे नॉर्मल आईपी पैकेट रिसीव हो रहा था तो मैं डेस्टिनेशन आईपी चेक करता था, राइट? अब मुझे कैसा पैकेट रिसीव हो रहा है, लेबल। लेबल्ड पैकेट, राइट? तो अब अगर मुझे लेबल्ड पैकेट रिसीव हो रहा है तो मैं कौन सी टेबल चेक कर रहा हूं, एमपीएलएस टेबल। और फिर से पैकेट को क्या कर दे रहा हूं, आउट। तो भाई पिछले केस में भी तीन प्रोसेस थे मेरे पास, अभी भी तो तीन ही प्रोसेस है, तो फास्ट कहां से हो गया? गेटिंग अ हाँ। पॉइंट? यप। टाइम तो उतना ही लग रहा है। समटाइम्स इन इंटरव्यू, इंटरव्यूअर क्या बोलता है कि फास्ट कैसे हो गया, आप ये बताओ। भाई तीनों में तो सेम काम हो रहा है। अब भाई अगर मैं कोई भी चीज चेक कर रहा हूं तो टाइम तो उतना ही लगेगा, चाहे मैं राउटिंग टेबल चेक करूं चाहे मैं एमपीएलएस टेबल चेक करूं, राइट? या फिर मैं अगर बात करता हूं चाहे मैं सेफ टेबल चेक करूं या फिर मैं एमपीएलएस टेबल चेक करूं, दोनों में टाइम तो सेम लग रहा है। सो हाउ हाँ। इट इज फास्ट? ओके, लेट्स डिस्कस नाउ कि फास्ट कैसे हुआ। देखो एक बार ये समझ आया आपको टोपोलॉजी? लेयर वन है, लेयर टू है, और यहाँ पे क्या लग गया आपका, एमपीएलएस ये लेयर। बताया था मैंने, एमपीएलएस इज वर्क इन बिटवीन लेयर लेयर 3 एंड थ्री लेयर एंड टू। 2, राइट? ठीक है, आगे चलते हैं। सेम थिंग यहाँ पे यही लिखा हुआ है। इफ यू फैमिलियर विद कंप्यूटर नेटवर्क यू मस्ट नो देयर इज अ 5 layer in TCP IP model, the MPLS line between 2 and 3 of OSI model, data link layer and network layer. That's why is also we can say 2.5 layer of protocol in MPLS header. Okay, what he is saying, MPLS हेडर का साइज कितनी बिट का है, 32 बीट का। आईपी एड्रेस का साइज भी कितना होता है IPv4 का, 30। 32 ही होता 32। है। ठीक है, चलो अब ये क्या है आपका एमपीएलएस हेडर है। जैसे भाई ये आपका क्या हो गया, लेयर वन, फिर आपका कौन सी लेयर आ गई, लेयर टू, उसके बाद तो नॉर्मली लेयर थ्री आती है, आईपी पैकेट मतलब लेयर थ्री हो गया ये आपका। बट उसके बीच में क्या काम कर रहा है हमारा,
MPLS हो जाए। MPLS हेडर। अब उस हेडर के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन हो रही है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन है। तो चार इंफॉर्मेशन होते हैं। फर्स्ट लेबल्स, सेकंड एक्सपेरिमेंटल बिट, थर्ड बॉटम ऑफ स्टैक बिट, बॉस बिट। उसके बाद क्या होता है TTL। तो आईपी जो MPLS हेडर होता है उसके अंदर कितनी चीजें होती हैं, चार चीजें। ठीक है, पहला क्या होता है, लेबल। सेकंड क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल। थर्ड, बॉटम स्टैक। फोर्थ, टाइम टू लीव। परफेक्ट। और इन टोटल अगर मैं ये पूरे आपके MPLS हेडर के अंदर चार चीजें होती है, उन सबका टोटल अगर मैं साइज करूं तो कितना बिट हो जाता है, 32 बिट। और आईपी एड्रेस का भी साइज कितना होता है, 32 बिट। 32 बिट। करेक्ट, चलो परफेक्ट। अब देखो, अब कंसर्न क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। MPLS का हेडर 32 बिट का होता है। उसके अंदर फर्स्ट जो बिट होती है उसको क्या बोलते हैं, लेबल। लेबल। इसको पढ़ते हैं यहाँ पे। जो लेबल होता है उसका साइज कितना होता है, 20 बिट का। 20 बिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द लेबल, द लेबल फील्ड इज ऑफ 20 बिट, द लेबल कुड टेक फ्रॉम। अब देखो, आपको पता है IPv4 में आईपी एड्रेस का साइज 32 बिट होता है, राइट। हम्म। और अगर मैं इसमें फॉर्मूला पुट करूं 2 to the power 32, सो अप्रोक्सीमेट हमारे पास कितनी आईपी एड्रेसेस है, 4 बिलियंस ऑफ आईपी एड्रेसेस IPv4 के अंदर, करेक्ट। हम्म। और आपके लेबल का जो साइज होता है वो कितनी बिट का है, 20 बिट का। और अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं 2 to the power 20, बिगेस्ट का साइज कितना है, 20 बिट। तो अप्रोक्सीमेट क्या वैल्यू आएगी, 48,000। 1,48,575। हम्म। तो यहाँ पे भी देखो ऐसे ही है, 2 to the power 20 - 1, सो कुछ ये वैल्यू आएगी। हम्म। तो अब ध्यान से देखना बिल्कुल, आपका जो लेबल का साइज है वो कितनी बिट का है, 20। ये तो साइज है, बट इसके अंदर कितने लेबल्स हम बना सकते हैं, कहां से कहां तक, वन फ्रॉम मिलियन 0 to फोर्टी एट 1,48,575, करेक्ट। हम्म। इतना मतलब 0 से लेके 1,048,575। ठीक है जी, ये वैल्यू हो गई आपकी। हम्म। आपको याद है मैंने क्या बताया था कि राउटर में, जैसे लेट सपोज राउटर है, ठीक है, R1 राउटर है, और इसकी राउटिंग टेबल में अभी 10 नेटवर्क एड्रेसेस है। इस तरीके से देख, 10.0, 20.0, 30.0, 40.0। तो भाई जब हम MPLS चलाएंगे तो वो क्या करेगा, हर एक नेटवर्क के लिए क्या लगा देगा, लेबल। परफेक्ट। तो लेट सपोज अभी मेरी राउटिंग टेबल में कितने नेटवर्क एड्रेसेस हैं, 100। तो कितने लेबल लगाएगा वो, 100। है ना। अब आप बताओ, आपकी राउटिंग टेबल में 1 लाख नेटवर्क भी तो हो सकते हैं, तो उन 1 लाख नेटवर्क के लिए 1 लाख लेबल्स भी तो चाहिए। हाँ। तो जो लेबल की रेंज है ना वो ये रेंज है, गॉट इट नाउ। यप। इतने लेबल एक राउटर लगा सकते हैं MPLS के अंदर। हम्म। चलो, अब एक और चीज है भाई, लेबल की जो रेंज है वो तो कहां से स्टार्ट है, 1 से लेके 1,048,575, 75। बट उसमें 0 से लेके फ्रॉम 0 to 15 रिजर्व्ड है किसी और काम के लिए। किस काम के लिए, विल डिस्कस लेटर। तो अब जो रेंज फिर से बची वो कहां से बची, फ्रॉम 16 15 टू, टू, या 16 to 1048,575। करेक्ट। तो मतलब आपके जो लेबल यूज होते हैं ना, जब आप MPLS चलाते हो, तो जो पहला लेबल लगेगा ना, 10 कभी भी नहीं लगेगा,
क्योंकि 10 तो भाई 16 किस लगेगा। रेंज के अंदर आ रहा है, इसमें आ रहा है। हम्म। किधर से स्टार्ट होगा, फ्रॉम 16। 16, बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम द 16, करेक्ट। हम्म। इतना क्लियर है? यस। परफेक्ट। अब आ जाते हैं किसके अंदर, एक्सपेरिमेंटल बिट। अब देखो एक्सपेरिमेंटल बिट अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ क्यूए। सर्विस। मैं आपको इतने बता देता हूं व्हाई वी आर यूजिंग दिस, टू प्रायोरिटाइज द डेटा। अगर देखो नॉर्मली आईपी हेडर के अंदर भी हम क्यूएस क्वालिटी ऑफ सर्विस यूज करते हैं, अगर हमें प्रायोरिटाइज करना हो डेटा को, राइट। सो वी आर यूजिंग there is a field I forget in IP header, in TCP header। TCP हेडर के अंदर अर्जेंट पॉइंटर होता है, ठीक है। और आपका ये लेयर 3 के अंदर आपका होता है क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्लास ऑफ सर्विस, आई फॉरगेट दैट फील्ड, नो प्रॉब्लम। लेयर 2 हेडर के अंदर क्या होता है, कॉस होता है, क्लास ऑफ सर्विस। तो ये सारी फील्ड्स किस लिए होती हैं, डेटा को प्रायोरिटाइज करने की। बट अगर मेरी कंपनी एमपीलेस यूज कर रही है, तो हम डेटा को कैसे प्रायोरिटाइज करेंगे। तो एमपीलेस हेडर के अंदर भी एक्सपेरिमेंटल बिट होती है टू प्रायोरिटाइज द डेटा, ठीक है। चलो अब आते हैं थर्ड फील्ड पे, दैट इज व्हाट, बीओएस, बॉस स्टैंड फॉर बॉटम ऑफ स्टैक। अब ध्यान से देखना, देखो जो एमपीएलएस है ना, एक तो होता है क्या, नॉर्मल एमपीएलएस। मतलब एक राउटर है, उस राउटर पे हमने एमपीएलएस की कमांड चला दी, तो वो एमपीएलएस इनेबल्ड हो गया, ठीक है। मतलब उस राउटर के पास पावर आ गई कि लेबल बेस्ड फॉरवर्डिंग कर पाए, ठीक है जी। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल एमपीएलएस। उसके बाद आता है MPLS L3 VPN, this is also a part of CCI Enterprise Lab। अब हम अगर उससे भी आगे जाए हम, लाइक इन सर्विस प्रोवाइडर, तो उसके बाद हमारे पास क्या आता है, MPLS TE, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ठीक है। अब देखना ध्यान से, हमें पता है भाई पहले लेयर 1 होता है, उसके बाद क्या होता है, लेयर 2 होता है, लेयर 2। लेयर 3, लेयर 4 लेयर एंड देन 4। लेयर 5, करेक्ट। अब आपने लेट सपोज एक राउटर पे क्या एनेबल किया हुआ है, नॉर्मल एमपीएस। नॉर्मल एमपीएलएस। उस केस में एमपीएलएस का एक हेडर लगेगा, एमपीएलएस का एक हेडर लग गया यहाँ पे, ठीक है। और याद है आपको एमपीएलएस के हेडर के अंदर अभी मैं आपको पढ़ा था, बॉस बिट होता है, बॉटम ऑफ स्टैक, या राइट। बॉटम ऑफ स्टैक। तो अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैंने सिर्फ क्या इनेबल किया हुआ है, नॉर्मल एमपीएलएस, ये और ये इनेबल नहीं किया। तो इस टाइम पे बॉटम ऑफ स्टैक बिट क्या होगी, 1। ये बॉस बिट या तो 1 होगी या तो 0 होगी। 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब है कि पीछे से एक और एमपीएलएस हेडर नहीं आ रहा है। मतलब ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि एक और पीछे से एमपीएलएस हेडर नहीं आ रहा, करेक्ट। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, पीछे से बोले तो दूसरे ओके ओके राउटर, ओके, मतलब दूसरे मतलब राउटर किसी में और राउटर एमपीएलएस। से, किसी और राउटर से, ओके, समझ गया, या समझ ठीक गया। है। क्योंकि नॉर्मल एमपीएलएस में क्या होता है, एक ही एमपीएलएस का हेडर लगता है, बट L3 वीपीएन में 2 एमपीएलएस के हेडर लगते हैं, ट्रैफिक इंजीनियरिंग में 3 एमपीएलएस के हेडर। तो पता कैसे चलेगा हमें कि दूसरा एमपीएलएस का हेडर रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा, इस बॉस बिट से। बॉस बिट 1 है, इसका मतलब एमपीएलएस हेडर रिसीव नहीं हो रहा, और अगर रिसीव नहीं। नहीं हो रहा इसका मतलब मैं नॉर्मल एमपीएलएस यूज कर रहा हूं, हम्म। राइट। बट समझ अब गया। लेट सपोज ऐसा एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने एमपीएलएस L3 वीपीएन इनेबल कर दिया, हम्म। तो अब ये बॉस बिट क्या हो जाएगी, 0। 0 का मतलब क्या है, यस। रिसीव हो रहा है, मतलब एक और एमपीएलएस हेडर पीछे से आ रहा है, तो एक और एमपीएलएस हेडर आ गया यहाँ पे।
बट अब यहाँ पे जो बॉस बिट होगी वो क्या होगी? 1, 1 क्योंकि अभी मैं एमपीएलएस L3 वीपिन यूज कर रहा हूँ। एमपीएलएस L3 वीपिन के अंदर टू एमपीएलएस हेडर लगते हैं। तो मैं बता रहा हूं इसको मैंने 1 क्यों किया, कि एक और पीछे से कोई भी एमपीएलएस हेडर नहीं आ रहा। ठीक है, ओके। बट नाउ लेट सपोज मैं एमपीएलएस ट्रैफिक इंजीनियरिंग यूज कर रहा हूं। अब क्या होगा? अब ये वाली बिट भी क्या हो जाएगी? 0। और ये क्या हो जाएगी? बॉस बिट क्या हो जाएगी? 1। मतलब अब मैं कोई भी एमपीएलएस हेडर पीछे से रिसीव नहीं कर रहा। ये आपका क्या हो गया? एमपीएलएस ट्रैफिक इंजीनियरिंग, करेक्ट। तो बेसिकली बॉस बिट क्या काम करता है? ये आपको बताता है, इट इंडिकेट्स one more MPLS header is coming from the backside or not, right? यस 0 का मतलब क्या है? आ रहा है पीछे से एक और हेडर। 1 का मतलब क्या है? नहीं आ रहा है। नहीं डन, ओके। अब आ जाते हैं किस पे? TTL पे। वी आर नॉट डिस्कसिंग राइट नाउ दैट TTL, विल डिस्कस लेटर, ओके। ओके TTL normally, like what is TTL? Why we are using TTL? TTL we are टाइम टू using लीव to avoid the layer 3 loops. ठीक है, ये क्या करता है? लेयर 3 लूप्स को अवॉइड करता है। बट इन द एमपीएलएस दिस टीटीएल बिहेवियर इज डिफरेंट। यहां पे इस टीटीएल का बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? विल डिस्कस लेटर, ओके। ओके चलो, इतना क्लियर हो गया? यस सर ठीक है, चलो। अब तो अभी तक हमें क्या पता चला? आपको आई होप थोड़ा सा आइडिया लग गया है कि एमपीएलएस किस तरीके से काम कर रहा है। यस मतलब इतना अभी समझ आ गया कि बेसिकली जो भी होगा, अब आईपी बेस्ड फॉरवर्डिंग नहीं होगी, क्योंकि अभी तक जितना भी हमने राउटिंग पढ़ा है, लाइक रिप, ईआईजीआरपी, ओएसपीएफ, बीजीपी, एनी प्रोटोकॉल, वहां पे आईपी बेस्ड फॉरवर्डिंग हो रही थी। एमपीएलएस के केस में लेबल्ड बेस्ड फॉरवर्डिंग होगी, करेक्ट? यस राइट। अब हम पढ़ते हैं क्या? बेनिफिट्स। एक बेनिफिट तो पता। अच्छा, एक कंसर्न था मेरा, वो डिस्कस नहीं किया हमने। कंसर्न क्या था, याद है आपको? कि हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि भाई अगर मैं सेफ और सेफ यूज कर रहा एमपीएलएस हूँ, राइट, अगर मैं सेफ यूज कर रहा हूं तो भी हमारा क्या हो रहा है? पहले डेस्टिनेशन आईपी चेक हो रहा है, फिर सेफ लुकअप हो रहा है, एंड देन पैकेट क्या हो रहा है? फॉरवर्डिंग आउट हो जा रहा है, राइट, फॉरवर्ड। और अगर मैं एमपीएलएस की बात करूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एमपीएलएस एमपीएलएस लेबल टेबल चेक हो रहा है, और हमें यहाँ पे भी जो भी लेबल है वो मैं चेक कर रहा हूँ, लेबल चेक हो रहा है, एमपीएलएस टेबल चेक हो रहा है, एंड देन पैकेट अगेन क्या हो रहा है? आउट। तो यहाँ पे भी 3 प्रोसेस है और यहाँ पे भी 3 प्रोसेस है 3 प्रोसेस है। तो अभी भाई फास्टर कैसे हो गया एमपीएलएस? सो दिस इज द प्रॉब्लम। अब मैं आपको क्लियर करता हूँ कि एमपीएलएस फास्टर कैसे हो गया। देखो, राउटर पैकेट रिसीव करता है। अब आपको याद है जब डेस्टिनेशन आईपी चेक होता है तो वो कितनी बिट का होता है आईपी एड्रेस? 32 बिट का आईपी 32 एड्रेस, राइट, परफेक्ट। यस सेकंड कंडीशन लेते हैं। यहां पे मुझे एमपीएलएस पैकेट रिसीव हो रहा है, और एमपीएलएस का क्या रिसीव हो रहा है? लेबल। टेबल एमपीएलएस का जो हेडर का साइज है वो कितना बिट होता है? 32। 32 बट एमपीएलएस का जो लेबल साइज है वो कितना होता है? 20 याद है ना आपको? 2 to the power 20 लगा के कुछ बिलियंस ऑफ हाँ हमारे पास लेबल्स रिसीव हुए थे, है ना? 10,14,775 करेक्ट, करेक्ट, समथिंग करेक्ट, एग्जैक्टली। सो आपके जो, देखो, आपका जो लेबल्ड साइज है, लेबल का जो साइज है वो कितना है? 20 20। अब ध्यान से देखो भाई, नॉर्मली यहां आपको राउटर, नॉर्मल ट्रेडिशनल नेटवर्क में विदाउट एमपीएलएस, राउटर जब पैकेट को रिसीव करता था, मतलब राउटर 32 बिट चेक कर 32 बिट को क्या कर रहा था? प्रोसेस कर रहा था, राइट। बट अब एमपीएलएस में क्या हो रहा है? एमपीएलएस का जो लेबल साइज है वो कितना बिट है? 20 तो ये कितने बिट को प्रोसेस कर रहा है ओनली? 20 बिट को और ये कितने बिट को प्रोसेस कर रहा है? 32 तो बिट को आप बताओ कौन सा फास्टर होगा? 20 राइट।
सो काम तो देखो ये अभी भी 3 प्रोसेस वही कर रहा है और ये भी 3 प्रोसेस वही कर रहा है, बट ये प्रोसेस फास्टर क्यों कर रहा है? बिकॉज ऑफ 20 बिट। लेबल मुझे सिर्फ 20 20 बिट। बिट के लेवल को प्रोसेस करना है और यहाँ पे 32 बिट के लेवल को प्रोसेस करना पड़ रहा है। गेटिंग अ पॉइंट? यस। सो हाउ इट इज फास्टर? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नहीं, इज वेरी क्लियर सर। सुपर सुपर। सो फर्स्ट रीजन जो था वाई एमपीएलएस, ये आपका फर्स्ट रीजन था और वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। अब बहुत सारे रीजन है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, अब हमारी ना एक रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट को समझते हैं पहले, तब हमें कॉन्सेप्ट समझ आएगा। यू नो व्हाट इज पीई राउटर एंड व्हाट इज सीई राउटर? नहीं। पीई स्टैंड्स फॉर प्रोवाइडर एज, ओह, सीई प्रोवाइडर स्टैंड्स है। फॉर कस्टमर एज। हम्म। मतलब लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपका ये एक आईएसपी है, ठीक है, एंड आईएसपी पे हमारे पास बहुत सारे राउटर्स है, R1 है, R2 है, और ये आपका एज पे लगा हुआ है एक राउटर R3, और एक और राउटर एज पे लगा हुआ है R4, ठीक है। कुछ इस तरीके से कनेक्टिविटी। तो इन राउटर को हम क्या बोलेंगे? पी राउटर बोलेंगे। ये देखो भाई, आईएसपी राउटर्स क्या करते हैं? सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना, हम्म। तो इनको क्या इसलिए बोलते हैं? प्रोवाइडर राउटर। हम्म। बट एक एज पे लगा है, एज का मतलब कि मतलब लाइक बाउंड्री पे नहीं लगा ना ये R1 और R2। बाउंड्री पे कौन से हम्म। राउटर लगे हुए हैं? R3 एंड R4। R4। तो इनको क्या बोलेंगे? इनको पीई बोलेंगे। प्रोवाइडर ये भी है, ये भी है, ये भी है, बट ये प्रोवाइडर एज पे लगे हैं और ये प्रोवाइडर भी एज पे लगे, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस इज द प्रोवाइडर एज एंड दिस इज ओनली हम्म। प्रोवाइडर राउटर। हम्म। ठीक है, चलो। अब अब भाई मेरा एक कस्टमर है, लेट सपोज नेटवर्क अंपायर। सो भाई यहां पे मेरा दिल्ली में एक ब्रांच है, ठीक है, और एक और ब्रांच है मेरा दुबई दुबई में, ठीक है। तो यहां पे मैंने एक राउटर लगाया, एक राउटर यहां पे भी लगाया, ठीक है। तो अब ये राउटर दोनों कनेक्टेड होंगे ऐसे, कस्टमर हम्म। राउटर और प्रोवाइडर राउटर, जो आईएसपी का राउटर है। तो ये हम्म। कस्टमर राउटर है, इसको इसलिए बोलते हैं सीई, कस्टमर एज पे लगाए, मतलब ये भी बाउंड्री पे लगाए, कस्टमर की बाउंड्री पे लगाए, और ये सर्विस प्रोवाइडर की बाउंड्री पे लगाए। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड व्हाट? पीई एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट? सीई। सी। ठीक है, इतना क्लियर है? यस। चलो ग्रेट। अब देखो, ये कुछ टर्म्स हमें पता होनी चाहिए सर्विस प्रोवाइडर की, राइट? चलो अब आगे मूव करते हैं। नाउ द रिक्वायरमेंट इज व्हाट? लेट सपोज मेरा यहाँ पे एक राउटर है दैट इज कॉल्ड पीई, एक और राउटर है यहाँ पे सी। पी। पीई, ठीक है, और ये पी राउटर है सिर्फ, ये सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क है, एक सिंगल एसपी है, राइट? ओके। अब अब सी, द थिंग इज व्हाट? कस्टमर एज 1, कस्टमर एज 2, कस्टमर एज 3, कस्टमर एज 4। तो मेरे कितने कस्टमर है? 4 कस्टमर है, ठीक है। और ये एक राउटर हो गया आपका कस्टमर एज। अब देखो ध्यान से,
ठीक है जी, कुछ इस तरीके से है। चलो, अब ये टोपोलॉजी हो गया। अब कंसर्न क्या है कि अभी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं चाहता हूं कि ये वाला जो CE2 कस्टमर है ना, वो किससे कम्युनिकेशन करे सिर्फ? C4 से। करेक्ट। और ये वाला जो कस्टमर है CE1, वो सिर्फ किससे कम्युनिकेशन करे? CE। 3 से। ठीक है जी, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। बट प्रॉब्लम क्या है ना, देखो, प्रॉब्लम इज व्हाट, जो CE1 है ना, CE1, उसका जो इंटरनल नेटवर्क चल रहा है भाई, ये तो आपका कस्टमर का एज डिवाइस है ना, इसके अंदर कुछ राउटर और लगा होगा, स्विचेस लगे होंगे, पीसीस लगे होंगे कंपनी के अंदर, राइट? कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ नेटवर्क चल रहा होगा इंटरनल। तो लेट सपोज कंपनी के अंदर जो नेटवर्क चल रहा है वो चल रहा है 1.1.1.0/24, ठीक है? राइट, चलो। और इस कंपनी के अंदर भी ना सेम सबनेट चल रहा है। हो सकता है ना भाई, प्राइवेट आईपी, पब्लिक आईपी हम सेम यूज नहीं कर सकते, बट प्राइवेट आईपी हम सेम यूज कर सकते हैं, राइट? यस। तो यहां पे भी सेम सबनेट चल रहा है और यहां पे भी सेम सबनेट चल रहा है। दिस थिंग इज क्लियर। यस। अब अगर CE3 1.1.1.1 से, या फिर हम बोल सकते हैं 1.1.1.0 से कम्युनिकेशन करना चाहता है इससे, सो क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा, इस राउट को फॉरवर्ड शेयर कराना पड़ेगा यहां से यहां तक, राइट? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, शेयर करा देते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू हम राउट्स को शेयर करा सकते हैं इजीली, नो प्रॉब्लम, राइट? अब देखो कंसर्न क्या है, और CE2 CE4 से कम्युनिकेशन करना चाहता है, तो अगर भाई CE4 CE2 से कम्युनिकेशन करना चाहता है तो CE4 की भी राउटिंग टेबल में 1.1.1.0 ये वाला नेटवर्क इंस्टॉल होना चाहिए, राइट? तो हमें इसको कराने के लिए हमें क्या यूज करने पड़ेंगे? सम राउटिंग प्रोटोकॉल्स, करेक्ट? यस। चलो ठीक है, मैंने राउटिंग प्रोटोकॉल्स कर लिए इनेबल्ड। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, CE1 शेयर करेगा राउट अपना, कौन सा? 1.1.1.0/24, राइट? और CE2 भी सेम, वही सेम प्रीफिक्स तो है, शेयर कर देगा किसको? P1 को, राइट? मतलब यस। P1 के पास 1.1.1.0/24 किधर से रिसीव हो रहा है? कस्टमर C2 से। CE1 से, और P1 यही से। सेम राउट, C2 से हो रहा राइट ना? परफेक्ट। C2 से भी हो रहा है। अब आप बताओ, है। क्या राउटर सेम राउट इंस्टॉल कर लेगा? नहीं। नो। ये राउटर क्या करेगा, बेस्ट पाथ सिलेक्शन करना स्टार्ट कर देगा और इनमें से कोई एक राउट को इंस्टॉल कर लेगा। लेट्स सपोज उसने वाया कौन सा वाला कर लिया, कस्टमर 2 वाला इंस्टॉल कर दिया और 1 वाला रिमूव कर दिया। अब भाई 1 वाले कस्टमर तो कम्युनिकेशन ही नहीं कर पा रहे, प्रॉब्लम है। सो यस। व्हेन वी हैव डिफरेंट कस्टमर विद सेम सबनेट, what I'm saying, different customer, we have two different customer but the subnet will be same, then we are using what? MPLS MPLS L3VPN, LTV बराबर है। राइट? सो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम बेसिकली यहाँ पे L3VPN जो यूज करेंगे उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड VRF यूज करेंगे, हम IBGP यूज करेंगे, MPBGP यूज करेंगे, राइट? सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द MPLS L3VPN। सो एक और आपको कंसर्न पता चला, why we are using MPLS L3VPN? If we have different customer with the same subnet, then also we are using a MPLS, right? यस। करेक्ट, ओके। एक और प्रॉफिट आपको बताऊं मुझे,
तो ये देखो, मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ, सेम चीज लिखा हुआ है। देखो, multiple customer, if we have multiple customer with same subnet on same router, right? बिकॉज अगर मेरे पास टू डिफरेंट राउटर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ यू हैव अ सेम राउटर देन देयर इज अ प्रॉब्लम, राइट? ओके, नाउ सेकंड थिंग, चलो एक और चीज डिस्कशन करते हैं यहाँ पे। नाउ द थिंग इज व्हाट, let's suppose customer C wants to, sorry, customer 1 wants to communicate customer 3, ठीक है? कस्टमर 1 कस्टमर 3 से कम्युनिकेशन करना चाहता है, ठीक है? ओके, सो कंसर्न क्या है अब? ये हमारा आईएसपी नेटवर्क है, अब देखो, जो आईएसपी राउटर्स होते हैं ना, उनके पास लैक्स ऑफ राउट आ रहे होते हैं, ठीक है? देखो, एट द एंड इन राउटर्स को क्या करना है, राउट्स को शेयर करना है फ्रॉम वन राउटर टू अनदर राउटर। अब देखो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मैंने अगर आपको ऐसे बोला कि पीई 1 राउटर को 1 लाख राउट रिसीव हो रहे हैं, ठीक है? आपको उसको पीई 2 को शेयर करना है, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे, फॉरवर्ड कर दोगे किसको? इस राउटर को, और इस राउटर को भी, और ये राउटर किसको फॉरवर्ड कर देगा? P2 को। P2 को। आ गए 1 लाख राउट P2 के पास, है ना? बट अभी हमारे आईएसपी पे कितने राउटर है टोटल? 4। 4 राउटर है, 4 राउटर है, और चारों के पास, बिकॉज इस राउटर के पास तो 1 लाख राउट आ ही रहे थे, इसने इस वाले पी राउटर को भी फॉरवर्ड कर दिया और इस वाले पी राउटर को भी फॉरवर्ड कर दिए, और उन दोनों ने इसको फॉरवर्ड कर दिया, मतलब चारों राउटर के पास वो 1 लाख राउट रिसीव हो रहे हैं, यस और नो? यस सर। ठीक है, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि आपके पास कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हो कि ये जो पी राउटर ना, सिर्फ पी राउटर, नॉट पीई, जो ये पी राउटर है, उन राउटर को वो 1 लाख राउट रिसीव ना हो और डायरेक्टली R1PE2 को राउट शेयर कर दे, तो ये वाला कॉन्सेप्ट परफेक्ट है, अच्छा है? या फिर वो चारों राउटर 1 लाख राउट इंस्टॉल कर रहे थे अपनी राउटिंग टेबल में, वो वाला बेस्ट है? ये वाला देखो, अच्छा, ये वाला P2 को बेस्ट है डायरेक्टली क्योंकि कर दे। एट द एंड मुझे राउट ही तो शेयर करवाने हैं, राउटिंग टेबल में इतना सारा लोड बढ़ा के मैं क्या करूंगा, सही है। है ना? अगर अभी तो मेरे पास सिर्फ 4 राउटर है, अगर मेरे आईएसपी पे लेट्स सपोज 10 राउटर है और 2 राउटर पीई है, तो 8 राउटर क्या होंगे? पी होंगे। यस। अब अगर उन 10 के 10 राउटर पे मैं 1 लाख राउट शेयर करवाऊं, तो भाई वो सारे राउटर्स उन राउट्स को हैंडल कर रहे हैं, सीपी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा। देखो, सीपी यूटिलाइजेशन तो बढ़ेगा,
आपको सारे राउटर्स देखो, अगर आप 1 लाख राउट को इंस्टॉल करवाना चाहते हो ना राउटिंग टेबल में, तो आपको हाई सीरीज के राउटर्स भी परचेज करने पड़ेंगे। सही है। तो अगर मैं ऐसा काम करूं कि कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट हो जाए कि डायरेक्टली पीई पे राउट आए और इस पीई से डायरेक्टली दूसरे पीई पे राउट चला जाए विदाउट इंस्टॉलिंग द राउट ऑन दिस पी राउटर। मतलब अगर 10 राउटर है तो 8 राउटर जो है ना वो उन 1 लाख राउट से फ्री हो जाएंगे, राइट। सही है। तो भाई फ्री हो जाएंगे, उससे प्रॉफिट भी है ना। पहली बात तो 1 लाख राउट इंस्टॉल नहीं हो रहे, तो मुझे जो पी राउटर है ना, मैं अगर आईएसपी अपना न्यू बना रहा हूं तो पी राउटर मुझे हाई सीरीज के राउटर को परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं एक लो सीरीज के नहीं है। राउटर भी यूज कर सकता हूँ, यस और नो, हम्म। क्योंकि उनपे 1 लाख राउट तो इंस्टॉल करवानी ही नहीं है मुझे, हाँ। राइट। सो what we are doing basically, so what we are doing here, we are using what, IBGP इनडायरेक्ट नेबरशिप। मैं डायरेक्ट नेबरशिप यूज नहीं करूंगा, आईबीजीपी मैं बीजीपी यूज करूंगा। यहां से यहां डायरेक्ट क्या बनाऊंगा, आईबीजीपी की नेबरशिप बना दूंगा। हम्म। अब भाई आप मुझे एक चीज बताओ, आईबीजीपी की नेबरशिप बना दी मैंने यहां से यहां, राइट। हम्म। ठीक है। अब आप बताओ, ये हो गया मेरा कौन सा राउटर, PE1, और ये राउटर हाँ। कौन सा हो गया, P2। P2। P2 हो गया, परफेक्ट, ठीक है। अब मुझे 1 लाख राउट्स इस राउटर से इस राउटर पे पहुंचाने हैं, और मैं क्या चाहता हूं कि इन राउटर्स पे वो राउट रिसीव भी ना हो। तो हम्म। आप बताओ, राउट्स क्या हवा में उड़ के जाएंगे? नहीं। हवा में तो जाएंगे नहीं, जाना तो इधर से ही पड़ेगा। हाँ। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब मुझे यहाँ पे एमपीएलएस की हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो, अगर आप इन राउटर के थ्रू राउट्स को फॉरवर्ड करा रहे हो तो राउटिंग टेबल में राउट होगा तभी तो ये राउटर राउट्स को फॉरवर्ड करेंगे, राइट। हम्म। और मैं क्या चाहता हूं कि राउट्स इंस्टॉल ना हो इन राउटर्स के अंदर, राइट। यस। तो मैं इन राउटर्स पे क्या करूंगा, एमपीएलएस इनेबल कर दूंगा इन 4 राउटर पे। तो हम्म। आपको याद है, ये राउटर के पास 1 लाख राउट अवेलेबल नहीं है, बट PE1 राउटर फॉरवर्ड तो करेगा इसको किसके पास, पी के पास। बट पी भाई के पी पास। की तो राउटिंग टेबल में राउट ही नहीं है। राउट हम्म। हो या ना हो कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं तो अब किसके बेस पे राउटिंग एमपीएल स्टैक कर लेबल। रहे हैं, मैं लेबल के बेस पे फॉरवर्ड करा दूंगा ना पैकेट। हम्म। भाई आईपी हो या ना हो, वो तो मैं चाहती हूँ कि आईपी उसकी राउटिंग टेबल में राउट ना हो, तभी तो सीपी यूटिलाइजेशन लो होगा। तो मैं क्या करूंगा, एमपीएलएस इनेबल करके एमपीएलएस के बेस पे, लेबल्ड के बेस पे फॉरवर्डिंग कराऊंगा, आईपी के बेस पे नहीं कराऊंगा, क्योंकि भाई आईपी के बेस पे कराऊंगा तो राउट्स होने चाहिए राउटिंग टेबल के अंदर, हम्म। और राउट्स तो है नहीं, तो मैं एमपीएलएस के बेस पे पैकेट को फॉरवर्ड करा दूंगा और पैकेट्स मुझे यहाँ पे रिसीव हो जाएंगे, राइट। यस। तो फर्स्ट तो मैंने बताया था एमपीएलएस फास्ट फॉरवर्डिंग है, सेकंड मैंने बताया था क्या, कि व्हेन वी हैव different customer with the same subnet, then डिफरेंट also कस्टम। we are using MPLS. Third is what, route free राउटिंग। P routers। ठीक है, जो हमारे P routers है ना वो राउट्स फ्री होते हैं, है ना। इन इन राउटर के अंदर राउट्स इंस्टॉल नहीं होते ना, तो राउट्स फ्री हैं ये लोग, ओनली P2P डायरेक्टली फॉरवर्डिंग हो जाती है। ओके, ये क्लियर है। यस सर। सो कोर राउटर फ्री, इट मींस कोर राउटर्स नेवर मेंटेन अ कस्टमर राउट्स। कोर राउटर इट मींस पी राउटर, जो पी राउटर है वो आपके कस्टमर के राउट्स को इंस्टॉल नहीं करेंगे, ओनली पीई राउटर्स विल इंस्टॉल द कस्टमर राउट्स, करेक्ट, क्लियर। यस। एक और चीज है, एमपीएलएस ने क्या कर दिया, रिडिस्ट्रीब्यूशन को रिमूव कर दिया।
So these are the reasons. That's why we are using MPLS. I hope this is clear to you now. Yes. Great. So wait.